last class we have started with the non-linear data structure, that is tree. We have finished a few terms related to data structure, terms related to tree. That is the introduction, that it is a non-linear data structure. We have already finished linear data structure like array and linked list. So in this, the data is stored in the hierarchical form. So in this hierarchical form, we have the first node which we call root. That is the first node. इसके कोई भी ancestors नहीं रहते, right? So you should know other terms related to this tree. We have already done what is root, that is the first node of the tree. What is leaf, that is the last node or which has no children or a child. It is called leaf. And siblings are basically the children from same parent. Like D and E are the basically children of B. So D and E can be sibling. E and F cannot be sibling because they have from different parent node. Okay, so these terms you should know, and the terms related to this tree is basically the first one is level of tree. Level of tree means how many generations are there in each tree. So the first node is, you can mark it as level 0, and the second generation you can mark it as level 1, and the third generation like this you can mark it as level 2. So this is called level of the tree. Next we did the depth or the height of the tree. What is the maximum height or depth of the tree? So that is total number of generation in the tree is called the depth or the height of the tree. See, if you are starting from 0, then your height will be the largest level plus 1. So largest level यहाँ पे क्या है 2 plus 1 3. So you have 3 is the height or the depth, or we can say the total number of generations of your tree is known as depth. Understood? Then we did last one is the degree. Degree of the tree means the how many children are there for each node. So if we start from A has 2 children, B or C. So node A has a degree of 2. Similarly, B has 2 children. So B is a node having degree of 2. And C is having 3 children, so its degree is 3. And D, E, F, G, H has no child, so its degree is 0. So what is the general or the tree degree of the tree? The degree of the tree is basically the maximum degree of a particular node is called tree. तो अभी यहाँ पे C की जो डिग्री है that is 3. तो ओवरऑल ट्री की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3. ओके, तो बाइनरी ट्री क्या होते हैं? बाइनरी ट्री जिसकी डिग्री 2 रहती है, which has a degree of 2. मतलब that tree can have 0 child, 1 child or more than 1 means maximum 2 children. Okay, so that is your degree of a tree, or binary tree has a maximum of 2 children. तो उसकी डिग्री 2 रहती है, इसलिए इसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं. So this is normal tree which has a degree 3, but in our syllabus we will focus on binary tree जिसका डिग्री कितना रहता है 2. मतलब हर एक कोई भी नोड हो उसका या तो एक भी चाइल्ड नहीं रहेगा या 2 चाइल्ड होंगे या 1, not more than 2. So we'll start with binary tree. So binary tree में we have 3 subparts. The first one is here. It can be empty. So empty means it has only one node, that is root, or it has 3 disjoint. The first part is root. Second part is the left subtree. Left subtree means this is your left subtree and this is your right subtree, like that. So it has left subtree and right subtree. तो जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी, मतलब यहाँ पे कुछ भी ना हो तो भी ये कंसिडर होगा. तो इट हैज अ डिग्री विच इज नॉट मोर देन. तो बाइनरी ट्री पे क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड में आता है व्हाट इज बाइनरी ट्री, और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है सॉल्व करने के लिए. तो मोस्टली अगर इस टॉपिक में से कुछ आता है तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन रहता है व्हाट इज बाइनरी ट्री, and solve a particular, they will give you one expression, mathematical expression, you have to place that expression in binary tree.
So that we will do. That question is very important. Now, next term related to binary tree is the relationship between total number of nodes and depth of a tree. टोटल नंबर ऑफ नोड्स मीन्स ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि दे विल गिव यू द डेप्थ ऑफ द ट्री और मीन्स द हाइट ऑफ द ट्री एंड यू कैन यू हैव टू टेल दैट हाउ मेनी नोड्स और द मैक्सिमम नोड्स यू कैन अकोमोडेट इन दैट ट्री. अभी जैसे इसमें एक एग्जांपल आई हैव टेकन, that is if the depth of the tree, if they will give you the depth of the tree is 3, means इसकी 3 लेवल का आपका ट्री है, तो आप कितने मैक्सिमम नोड भर सकते हैं इसमें. हर एक नोड में आप 2 से ज्यादा नोड नहीं भर सकते, तो ये कंप्लीट ट्री है. ठीक है, ये कंप्लीट ट्री है, हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन है. So this is called complete tree. You cannot accommodate more than these number of nodes in that binary tree. तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अभी तो आपको पता है, आपने बना के ड्रॉ किया. मैंने बोला अगर डेप्थ ऑफ 8, तो how you will draw 8 levels, so it will be very big diagram and count that nodes is very difficult. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, that is 2 raised to the power n minus 1. This is your formula. With the help of this formula you can find out that how many maximum nodes are there in that particular tree. So if the depth is 3, so you will put here 2 raised to the power 3 minus 1, means इसके अंदर 7 मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं. ठीक है, अगर अब ये मैं 4 हाइट का बनाऊं, तो यहाँ पर एक 2 नोड्स आ जाएंगे, यहाँ पर 2 नोड्स आ जाएंगे. Here also you will have 2 more nodes and here also you will have 2 more nodes. So it is how many levels? 4 levels. So if you have 4 levels, so how many nodes will be there? कितने नोड्स होंगे? 16, राइट. तो 16 के लिए कितने क्वेश्चन? अभी ये 7 है, तो हमारा जनरेशन कैसे बनेगा? कंप्लीट करो. अगर 4 के लिए बनाना है मुझे, तो एक ये नोड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यू आर एडिंग. तो 8 प्लस 7 कितना हो गया? मैक्सिमम कितने नोड्स हो जाएंगे? 15. तो ऐसे तो आप ड्रॉ करके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो what we will do, we will put directly in this formula if we have given height. So if the height is 4, so then 2 raised to the power 4 minus 1 कितना हो जाएगा? That is 16 minus 1 50. It is your MCQ question. If the height of the tree is this, then what will be the maximum number of nodes you can accommodate? So this is called, ये question भी आता है, what is the relationship between total number of nodes and the depth of the tree? So this is the relationship, and is your height, or with the help of this formula you can find how many or the maximum nodes you can accommodate in binary tree. Understood this concept? तो अगर मैंने बोला depth 7 है, if the height of the tree is 7, so how many nodes you can accommodate? If it is 2 raised to the power 7 minus 1, then अगर एक लेवल 7 लेवल का ट्री है, तो कितने अकोमोडेट होंगे? 128 minus 1, 127 nodes you can accommodate in this. Okay, and I hope understood and it is clear to you. Important है, MCQ में क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है. They will give you depth and you have to tell about the maximum number of nodes. उसके बाद how you are representing binary tree in memory. This is also important question कि आप binary tree जो आपने ये बनाया, ठीक है, इसको आप कैसे स्टोर करोगे मेमोरी में? How you will store this binary tree in memory? So we have 2 methods to store. One is the sequential representation and one is the linked representation of binary tree. So sequential representation में we need only one array to store whole binary tree nodes. But in case of linked representation of binary tree, we need 3 parallel arrays to store binary tree. So first we will start with this, how you will store linked binary
what you have to see. See, I have taken one example here. देखो, एक मैंने छोटा सा ट्री लिया है जिसके अंदर ये नोड्स है A B C D. ओके, दिस इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो ये कितने लेवल का ट्री है? 1 2 3 लेवल्स है ना. और 1 2 3 4 अभी भी इसमें मिसिंग है. कितने नोट्स मिसिंग है? बी के नोट्स मिसिंग है. 1 2 3 4 5 है. तो 2 नोट्स आर मिसिंग. बी के जो चिल्ड्रन है वो मिसिंग है, राइट. तो दिस इज नॉट कंप्लीट ट्री. तो एनी ट्री एनी ट्री यू कैन मेक. तो मैंने ये ट्री लिया है. अब इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे? तो फर्स्ट मेथड इज with the help of linked list. ठीक है, linked representation. तो अभी इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया. दिस डायग्राम आई हैव shown like this. Clear? Now if you can see that the A is this. If I am taking node A with the address 2, root address means your linked list, sorry, this binary tree starting from सेकेंड एड्रेस, मतलब एड्रेस नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है. तो आपका इस नोट को कहाँ स्टोर करोगे? यू विल स्टोर दिस इन मेमोरी लोकेशन 2, राइट. उसके बाद इट हैज सिंस लिंक लिस्ट है तो लिंक लिस्ट में आपका ये लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है. तो लेफ्ट चाइल्ड का भी आपको एड्रेस देना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव राइट चाइल्ड एड्रेस. तो अभी अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो कैसे स्टोर किया है? लेफ्ट 4, मतलब लेफ्ट नोड 4 में स्टोर होगा और जो राइट नोड है वो किस में स्टोर होगा? 5 में स्टोर. ठीक है. तो 4 में जो मैंने स्टोर किया, अब 4 में बी नोड स्टोर है. 4 लोकेशन पे इफ यू गो देन दिस इज योर एड्रेस ऑफ बी. तो बी हमने इन्फो, दिस इज फर्स्ट पैरेलल एरे, लेफ्ट इज योर सेकंड पैरेलल एरे, राइट इज योर थर्ड पैरेलल एरे. तो you have to you need 3 parallel array to store binary tree if you are using linked representation method. So in linked representation method आपको क्या करना पड़ेगा? 3 पैरेलल एरेज लेने हैं. तो आपको लेफ्ट नोड का एड्रेस और राइट नोड का एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा along with your info. क्लियर? तो जब भी आप लिंक रिप्रेजेंटेशन से बाइनरी ट्री में इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे देन यू नीड 3 पैरेलल एरेज. ओके. तो अभी आप देखोगे ये कंप्लीट नहीं है. सी के आप और भी चाइल्ड है. अगर आप ऐसे करो तो यहाँ पर एक और डायग्राम आप और इसको एक्सटेंड कर सकते हो. तो यहाँ पर आप बी स्टोर करो और यहाँ पर आप ई स्टोर करो. ठीक है. तो आप इसको और भी स्टोर कर सकते हो. सी को आप एड्रेस 1 दे सकते हो और ई को आप एड्रेस 3 दे सकते हो. तो यहाँ पर आप सी की इंफॉर्मेशन यू कैन स्टोर और हियर यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ. क्लियर? तो दिस वे यू कैन स्टोर बाइनरी ट्री इन लिंक रिप्रेजेंटेशन. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट इट विल बी क्लियर. अगर आप खुद से एक बाइनरी ट्री लेते हो, टेक एनी बाइनरी ट्री देन कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मेट. इस फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करो एंड रैंडमली यू गिव एड्रेस. यू ड्रॉ दिस टेबल आफ्टरवर्ड्स बट फर्स्ट यू पुट द एड्रेस. इन डायग्राम आप क्या करो? आप कोई भी रैंडमली एड्रेस दे दो एंड देन अकॉर्डिंगली यू इंसर्ट इन दिस. अभी यहाँ पे जैसे डोंट सी दिस, तो आपको पहले ये डायग्राम में आपने दे दिया 2, यहाँ पे आपने दे दिया इसको 4 और यहाँ पे आपने दे दिया 5. ठीक है. और उसके बाद ये ट्री को और कंप्लीट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस. तो यहाँ पर आपने ये जो स्टोर हो रहा है सी और यहाँ पे स्टोर हो रहा है, सॉरी यहाँ पे स्टोर हो रहा है डी एंड हियर यू आर स्टोरिंग. ठीक है. तो इसको लेट्स से 1 दे दिया और इसको दे दिया 3. पहले आप इस तरह से एड्रेसेस मार्क कर लो देन यू ड्रॉ टेबल एंड फिल इट. जैसे रूट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, हियर यू हैव स्टोर्ड ए, लेफ्ट एड्रेस क्या था 4, राइट एड्रेस क्या था 5, राइट. उसके बाद यू गो टू बी.
पे जाओ, 4 पे यू हैव स्टोर बी और उसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है तो यू मार्क इट 0 0। ठीक है, अभी सी पे जाओ, अभी इस टेबल के हिसाब से तो यहाँ डी और ई है, तो यहाँ पर आप 0 नहीं दो, एक्स नहीं दोगे, यहाँ पे आप दे दिया आपने 1 और यहाँ पे आपने दे दिया 3। तो आप 1 पे गए, आपने यहाँ स्टोर कर दिया डी एंड देन यू स्टोर 0 0। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सी हियर यू स्टोर 1 और हियर यू स्टोर 3। ठीक है, इफ यू वांट टू ड्रॉ फुल डायग्राम, आप ये सिर्फ एक सैंपल के लिए लिया था कि कैसे आप चल रहे हो, बट आई एम कंप्लीटिंग दिस डायग्राम। तो हमने सी को 1 में स्टोर किया, मतलब 1 में लेफ्ट नोड स्टोर हुआ, लेफ्ट नोड पे क्या है डी, तो हियर हैव स्टोर डी एंड उसके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 0 0। और उसके राइट में क्या स्टोर किया है ई, ऑलरेडी ई जो है वो 5th पे स्टोर है। ठीक है, तो 5th में हमने उसको स्टोर किया था, सॉरी 5th में सी स्टोर है, 1 और 3 हमने उसको दे दिया, तो 3 पे जाना है। नाउ यू हैव टू गो टू 3 एंड देयर यू हैव टू स्टोर ई, और ई के एड्रेसेस देने हैं 0 तो आप कितनी भी मेमोरी लोकेशन दिखा के रैंडमली कोई नंबर ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कोई सीक्वेंस में जाना है। लिंक लिस्ट होती ही इसलिए ताकि आप सीक्वेंस को स्कैटर्ड जो है लोकेशंस को ट्रैक रख सको या उस पर स्टोर कर सको डेटा। अंडरस्टूड? तो ये जो है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा आता है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस, ये भी बहुत इजी और अच्छा है। सीक्वेंशियल एक्सेस में हमारा एक ही एरे रहता है जिसमें हम लेफ्ट नोड राइट नोड सब स्टोर करते हैं, बट कैसे स्टोर करते हैं बहुत सिंपल है। इन दिस यू हैव टू सी द एड्रेस ऑफ पेरेंट। ओके, अभी जैसे एड्रेस ऑफ पेरेंट यहाँ पर क्या है, मैंने 1 दिया है, तो ये फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर है ना, ये 1, ये 2 पे स्टोर है, ये 3 पे स्टोर है, ये 4 पे स्टोर है, ये 5th लोकेशन है, ये 6th है, ये 7th लोकेशन है, ये दिस इज 8th लोकेशन एंड दिस इज 9th लोकेशन एंड दिस इज 10th लोकेशन। ठीक है, ये एरे के एड्रेसेस हैं। नाउ आपको देखना है, सपोज आपका जो ट्रू रूट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। Now, based on this address of root, you can calculate the address of left node as well as the address of right node. Left node को कैसे calculate करोगे? With the help of this formula. See, this is your formula. Left node के लिए you have to multiply the address with 2 and for right node you have to multiply the address with 2 for right node k plus 1. Okay, तो k जो है that is your address of parent, address of parent node. तो k left child के लिए parent node into 2 और right child के लिए parent node plus 1 into 2. क्लियर? तो अभी हम इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे अभी पेरेंट नोड क्या है हमारा, के ये है 1, तो बी का एड्रेस क्या हो जाएगा 2 into 1, मतलब बी का एड्रेस आपको क्या मिला, दैट इज 2। तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2 into के इज द एड्रेस ऑफ योर, इसका जो पेरेंट है, बी का पेरेंट ए है, ए किस में स्टोर है 1 में, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 2 into 1। और सी के लिए राइट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड के लिए क्या है 2 into k plus 1, 2 into k plus 1, यही है ना। तो 1 तो 2 into k plus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई देन ऐड। तो k का एड्रेस क्या है 1, तो 2 into 1 plus 1 3, तो c किस में स्टोर हो जाएगा 3। इस तरह से ये कैलकुलेट करके स्टोर होगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ डी, तो डी के लिए ये क्या है, बी का लेफ्ट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला है 2k। नाउ k इज हियर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 4, तो डी विल स्टोर इन 4th लोकेशन, राइट। इसी तरह से h क्या है, d का राइट चाइल्ड है,
राइट चाइल्ड के लिए क्या फॉर्मूला है? कैन एनीबडी टेल द लोकेशन? 4 into 2 8 plus 1. This formula you have to use. 4 into 2 8 plus 1. तो h किस में स्टोर हो रहा है? 9th लोकेशन पे. अंडरस्टूड. इसी तरह से अब हम इस पे आ जाते हैं सी. सी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है? ई. तो ई का लोकेशन क्या हो जाएगा? सिंस इट इज लेफ्ट चाइल्ड तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला 3 into 2 6. तो ई इज गोइंग टू स्टोर इन 6th लोकेशन. और राइट चाइल्ड के लिए क्या करेंगे? दिस फॉर्मूला 3 into 2 6 plus 1 क्या हो जाएगा? 7. अब देखो 5th लोकेशन और 8th लोकेशन इज फ्री. व्हाई? क्योंकि इसका ये चाइल्ड मिसिंग है और इसका ये चाइल्ड मिसिंग है. ठीक है ना. आगे भी हम देख सकते हैं 16 क्योंकि ये 4th लेवल का ट्री है ना. 4 लेवल है 1 2 3 4. तो अकोमोडेशन हम कितनी कर सकते हैं? 15 नोट्स की. क्लियर. तो अभी हमारा जो ये बीच बीच में फ्री हुआ है, क्यों फ्री हुआ है? क्योंकि इनके चाइल्ड जो है एक एक नोट जो है वो मिसिंग है. ये वाला मिसिंग था, ये वाला मिसिंग था. और आगे अगर हम 15 तक ले जाएंगे तो ये 4 और मिसिंग आपको दिखेंगे. क्लियर. तो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में यू हैव टू सी दिस फॉर्मूला कि कैसे आपको ट्री को स्टोर करना है. तो जब आप ट्री को स्टोर करते हैं तो लेफ्ट ट्री के लिए यू हैव टू यूज 2 into k. k is your k is the address of parent node. Okay. And for right child it is 2 into k plus 1. So first you multiply and then add. Then it is the address, you can get the address of right node. So this way these are two method. 4 marks में question काफी बार आया हुआ है. How to represent binary tree in memory. So we have two ways to represent binary tree in memory. First with the help of linked representation. For that you need 3 parallel array, info, left and right. हर एक नोड को आपको 3 पार्ट में दिखाना है. नोड में क्या स्टोर है, उसका लेफ्ट चाइल्ड का क्या एड्रेस है और राइट चाइल्ड का क्या एड्रेस है. ठीक है. इसको आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ these 3 parallel array. You give any random address on these nodes, उनके लेफ्ट नोड को और राइट नोड को, एंड place it in this array according to the addresses. Clear. And for sequential representation you need only one array, and calculation for left child is 2 into k, 2 into the address of parent node, and for right child 2 into address of parent node plus 1. Clear. So this way we can use this. अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. दे विल गिव यू किस तरह से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बाइनरी ट्री एंड सॉल्व दिस एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर. तो इन दिस केस बाइनरी ट्री का डेफिनेशन आपको लिखना है. दैट इज फॉर 1 मार्क एंड 3 मार्क्स फॉर दिस एक्सप्रेशन. तो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करना है अब आपको? If they have given you this expression, so what you have to start? You have to locate first the middle point of this expression. So this is left side and this is right side. So this is your middle point. ठीक है ना. E equals to this. So equal is your root. ठीक है. And इसका जो left side है वो E है and the whole expression is at the right side. ठीक है. ये जब होने के बाद now you have to locate the midpoint of this expression. तो इसका midpoint क्या है? Division. Clear. तो division is the root और उसका ये left side है and this is your right side. तो left side में आप आ जाओ. तो left side में जब हम आएंगे, अच्छा इन्होंने माइनस इस तरफ दिया हुआ है तो माइनस हमने इधर ले लेते हैं. प्लस है, ये रॉन्ग दिया हुआ है. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. ये ठीक कर लेना, ये रॉन्ग ब्रेक हुआ हुआ. दिस इज प्लस क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में क्या है? ए प्लस बी. जब हमने मिड लोकेट कर दिया तो हम इधर इसका ये लेफ्ट पार्ट हो गया ना. तो लेफ्ट पार्ट इज ए प्लस बी. तो प्लस इज द नोड और उसका लेफ्ट साइड ए और उसका राइट साइड बी.
ऐसे ही आप इस पे जाइए तो माइनस इज द मिड पॉइंट, राइट, ये मिड पॉइंट हो गया. E at right side or C into D at the left side. Again divide into expression into and C and D. तो आपको ये चेक कैसे करना है कि ये एक्सप्रेशन राइट है कि रॉन्ग, आपका ट्री राइट है कि रॉन्ग. आप लास्ट से स्टार्ट करो, ठीक है. तो C into D बना, यस बना, ठीक है. उसके बाद माइनस, दिस इज योर माइनस एंड दिस इज योर प्लस. तो माइनस ई बना, यस माइनस ई बना. और उसके पैरेलल में यहाँ पर प्लस ए बी बना, यस ए प्लस बी बना. नाउ दिस इज गोइंग एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे ये डिवीजन हुआ. And then it is going to this place equal or equal. तो आप लास्ट से ट्रेसिंग करोगे, then you will be able to see expression is correct or no. Someone is writing in chat box. हाँ, sign I misplayed. I have corrected identity. ठीक है, तो साइन रॉन्ग थे वो मैंने करेक्ट कर दिया. नाउ ये आपका टीपीएस में है तो टीपीएस से मैंने पिक लिया था, उसमें भी करेक्ट कर लेना. नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एक्सप्रेशन. तो सेम एक्सप्रेशन है. सबसे पहले अगर ये देखो ये पार्ट नहीं दिया होता, ठीक है, तो डोंट राइट. If it is not mentioned, then don't write, don't take any other assumed things. Okay, this is B is equals to this, yeah, Z is equals to this. If it is not mentioned, don't do. Then you start from here only. It's the midpoint window. Since it is given to start from equals to E at the left side or this expression at the right side. फिर इसका middle point division और फिर ये minus a plus b same expression I have taken. ये करेक्ट वाला है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन एक और मैं दिखाना चाहती हूँ जिसमें पावर आती है. अभी आप इसमें भी देखो, फिर से e है इक्वल्स टू e, देन अगेन लोकेट दिस इज योर मिड पॉइंट डिवीजन, देन माइनस p into q दिस साइड, देन इसका मिड पॉइंट प्लस राइट साइड t एंड r into s दिस साइड. मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखाना था जिसमें पावर आती है. तो आप पावर को कैसे एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उसको कैसे आप एक्सप्रेस करोगे. तो उसके लिए सेम, अब हियर इट इज नॉट गिवन दैट इट इज e is equals to, so don't write, okay, don't start with that. So you start with this. Your multiplication sign is not given, but we know that this is multiplication. So multiplication करो, then 1 minute. मल्टीप्लिकेशन करो, देन यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिस. इसके साइड पे देखोगे तो दिस इज प्लस, ओके, एंड राइट साइड y एंड मल्टीप्लिकेशन 2 into x है. दिस ऑल्सो यू हैव टू डू विद द मल्टीप्लिकेशन. अगर ऐसे भी दिया हुआ है तो डोंट राइट डायरेक्टली दैट दिस इज 2 into x. क्लियर. अभी ये देखो ये जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल, इसको आपको कैसे लिखना है, दिस वे. पावर को राइट साइड एंड द एक्सप्रेशन जिस पे पावर है उसको लेफ्ट साइड, एंड यू कैन रिप्रेजेंट इधर विद एरो और विद दिस मार्क. ओके, तो पावर इज दिस साइड एंड एक्सप्रेशन इज दिस साइड. देन यू कैन सर्च एक्सप्रेशन दैट माइनस इसका मिडिल पॉइंट a मल्टीप्लिकेशन 7 into b. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. आपको इसको देखना है कि पावर कैसे लिखा गया. इफ इट इज पावर देन यू डू लाइक दिस. क्लियर. तो ये एक एक्सप्रेशन मुझे दिखाना था. एंड वी हैव मेनी क्वेश्चंस इन टीपीएस. तो इस तरह से क्वेश्चंस आप देख सकते हो. ये वाला क्वेश्चन e equals to middle point is left side and this is the expression is at the right side. फिर इसका middle point minus, आप लेफ्ट साइड में आओगे, अगेन प्लस इज द मिडिल पॉइंट. देन 2x को अगेन यू हैव टू स्प्लिट लाइक दिस इनटू 2 into x और y और पावर, और फिर उसमें मिडिल पॉइंट देखो सेम क्वेश्चन ही है, माइनस b दिस साइड. तो आप ट्रेस करते टाइम यू कैन करेक्ट कि आपका एक्सप्रेशन वापस आ रहा है कि नहीं. तो यू स्टार्ट फ्रॉम लास्ट जनरेशन. 5 into a, yes, coming.
-p it is coming, then पावर के साथ इट इज कमिंग एंड इस तरह से 2x इट इज कमिंग प्लस y इट इज कमिंग एंड देन फाइनल एक्सप्रेशन डिवीजन लेफ्ट ट्री बना राइट सब ट्री और उसके बाद इक्वल्स टू। हाँ अजिंक्य बोलो। मैम रूट के लिए एरो नीचे पॉइंट करता है क्या? ऊपर ऊपर ऐसे भी कर सकते हो और वो नॉर्मल आप साइन दिखाते हो ना दिस वन बहुत बुक्स में इस तरह से भी साइन दिखाया नहीं, मैं रूट की बात कर रहा हूँ, मतलब रूट के लिए नीचे पॉइंट करना पड़ेगा ना मैं एरो को? स्क्वायर रूट टाइप तो टू नहीं यू जस्ट राइट हियर 1/2 हियर इन दिस इफ रूट इज देयर ओके मैम। 1/2 राइट इट हियर ओनली उसको वैसे नहीं शो करो ओनली इंस्टेड ऑफ 3 यू कैन राइट 1/2 और कोई आपको अगर आइडिया है तो बताओ